أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان کو رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ چاہے اس کو دنیا کی نعمتیں اور یہ سب کچھ دے کر بھی انسان کو زندگی گزارنے کا موقع دے سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کو آزمائشوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بات کریں تو بڑی آزمائشیں ان پر ہوئی،
یہ نہیں کہ کوئی تکلیف کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے کرے، اور اگر کوئی خوشحالی کا ٹائم ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ہمدرد سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا خیرخواہ ہے، اور یہ بات ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کے بہت سارے اسباب انسان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر مہربان ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب چاہتا ہے کہ یہ بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہتا یہ تکلیف میں رہے، لیکن اپنی کوئی انسان کی اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک فطری سی بات ہے، آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو آپ کو کب چاہیں گے کہ وہ چیز تکلیف میں رہے؟ مثلا کوئی گھر ہی بناتا ہے تو وہ گھر بنانے والا اپنی اولاد کو بھی اس میں بیتوکی جگہ پر قیمتی لگانے دیتا ہے، دیواریں نہیں خراب کرنے دیتا، اپنے بچوں کو خراب نہیں کرنے دیتا، اپنے پوتوں کو خراب نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میری بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ گھر بنایا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب انسان جو کچھ بھی نہیں ہے وہ اس قدر حساس طبیعت رکھتا ہے، تو اللہ خالق کائنات کو مہربان ہے، اللہ کو پیار کرنے والا ہے۔ تو جب اشرف المخلوقات کے طور پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ کب چاہے گا کہ یہ جہنم میں جائے، اس کو عذاب ہو، لیکن غلطیاں انسان کی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ بس انسان ہے کہ جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اور اللہ اس کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، اس وقت وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ یعنی جب اللہ کی نعمتیں دستیاب ہوئی اور اللہ کی طرف سے عزت والی زندگی نصیب ہوئی تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور اسی طرح وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اس پر رزق درج کر کے، اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب بھی خالق کائنات سے تعلق ہونا چاہیے تھا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاں دکھ تکلیف ہے تو اس کو تو انسان ظاہر ہے اللہ سے ہی ذکر کرے گا، لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالنے کا ان کو موقع آیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ کی خدمت ہوئے، عرض کی کہ آپ اگر دیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری مدد تو اللہ کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ چلو مجھے کو کام نہیں بتانا چاہتے تو یہی بتا دیں کہ میں کو آپ کو اللہ کا پیغام دے دوں کہ آپ کسی بات کو چاہتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کی بات بتا دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے نہیں، میں جو جس کے لیے میں کھڑا ہوں وہ میرے ہاتھ سے واقع ہے۔ تو لہٰذا آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جو ہوتا ہے وہ خالق کائنات سے تعلق تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پھر کسی چیز کو درمیان میں رکاوٹ نہیں کرنے دیتا۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا بنا کرے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ آئینہ دکھایا کہ یہ باتیں ہیں، کچھ احادیث میں بھی ہیں جن کی وجہ سے بندہ تکلیفوں اور دکھوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے رسوائی انسان کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ بلّہ
बच्चा जिसका वालिद फौत हो जाए, क्योंकि उसको आप देखिए कि ज़ाहिर है अभी बचपन होता है और उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होती है, और फिर आम यतीम की बात हो रही है। और कुछ यतीम तो वो होते हैं जिनका सूरह बलद में अल्लाह ने फरमाया यतीमन ज़ा मक़रबा, अल्लाह फरमाता है ये मुश्किल काम है करीबी यतीम का ख्याल रखना। आप देखें कि बहुत सारे शैतान है ना वसवसे डालता है। आम किसी आदमी का किसी के बच्चे का ख्याल तो लोग रख लेते हैं, लेकिन अपने वालिद भतीजे और अपने करीबी जो है उनका ख्याल रखना बहुत बड़े वसवसे आते हैं कि देखो जी कल को ये मतलब हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, ये करेंगे। ये सारी चीज़ों से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जब बंदा करता है तो उस वक्त बंदे को सवाब मिलता है। जब ये ज़हन में होगा कि भाई ये तो हमारे बच्चों से आगे बढ़ जाएंगे, तो वो कहते हैं ना कि यतीम या तो बहुत सुधर जाता है या बहुत बिगड़ जाता है। तो इसलिए कि सुधर तो इसलिए जाता है कि ज़ाहिर है बार बार उसको ही काम कहा जाता है, बार बार तुम ये करो तुम ये करो, अपने बच्चों को गाय नहीं जाता। तो ज़ाहिर है जो गायब जाएगा माशरा देखेगा, अकल तो उसी को आनी है, अपनों को तो नहीं आनी। फिर जब उसको बचा कर रखना है, यतीम को सिर्फ एक मुफ्त का मुलाजिम समझ के वो बेशक भांजा भतीजा भी क्यों ना हो या और कोई रिश्तेदार हो, तो जब इस तरह की नीयत रख के कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, ये इनको मुफ्त का बंदा मुलाजिम बना दे, तो फिर जाहिर है वो सुधर जाते हैं, अपने बिगड़ जाते हैं। तो ये एक माशरे का एक निज़ाम है, जाहिर है तरबियत के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रुसवाई के लिए उसका एक सबब ये है कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। और फिर दूसरी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारते नहीं हो। यानी तुम्हारे पास गुंजाइश तो थी कि खाना खिलाने की हमारे दीन के अंदर एक खास अहमियत है। आप देखें कि कई कफारों के अंदर इस बात को रखा गया है कि खाना खिलाओ। तो लिहाजा ये एक ऐसी चीज है कि जिसको इस दीन के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अहमियत के तौर पर रखा है। तो इसलिए इस बात को अपनी गुंजाइश के अंदर रहते हुए जिधर भी मुमकिन हो किसी को खाना खिलाने की जरूर बंदा कोशिश करे, उसकी कोई भी सूरत हो। दीन में यही है कि भाई अपनी गुंजाइश के अंदर करो, कि तुम मतलब गुंजाइश से बढ़कर तो नहीं है, तो ये कोशिश जरूर किया करें। इससे ये है कि फिर बज़ाहिर तो मुश्किल नजर आता है, एक वक्त में तो मुश्किल नजर आता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि ऐसा मिस्कीन जो मट्टी से मिला हुआ, मट्टी से मिला का मतलब ये है कि जिसको तुम खर्च करोगे तो तुम्हारा कोई इश्तिहार नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई तुम्हें सफी नहीं कहेगा। सिर्फ ये है कि अल्लाह खुश होगा कि तुमने किसी जरूरतमंद को खाना खिला दिया है। तो ऐसे को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि तुम किसी जरूरतमंद को खाना खिलाने पर उभारते नहीं हो, यानी कि खुद कोशिश नहीं करते कि तुम किसी जरूरतमंद को खाना खिलाओ। तो जब ये तुम्हारी आदत है तो ये आदत तुम्हें रुसवा कर रही है, अल्लाह नहीं रुसवा कर रहा, तुम्हारी ये आदतें तुम्हें रुसवा कर रही है। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि तुम माले वरासत सारा जो है वो हड़प करते हो। मसलन अगर फर्ज करो कुछ बहन भाइयों का लोगों का हिस्सा है तो उसके अंदर सारे वरसा को महरूम करके एक बंदा ही चाहता है कि जनाब वो सारा जो वरासत का माल है उसको मिल जाए। तो ये चीजें हैं कि जो तुम्हें रुसवाई की तरफ लेकर जाती है। और इसी तरह माल जो दौलत है इसको तुम दिल के साथ मोहब्बत तो कर रहे हो, यानी और सारी बातें तुम्हारी दिल के अंदर नहीं है, अल्लाह तुम्हें याद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद नहीं, बस सिर्फ दौलत की हवस जो है यही सब कुछ तुम्हारे लिए जो है वो अहमियत रखती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चार चीजें तुम यहाँ फरमाई कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, खाना खिलाने पर उभारते नहीं हो, और तुम माले वरासत सारा खुद समेटने की कोशिश करते हो, और दुनिया के माल से बड़ी मोहब्बत शिद्दत
साथ करते हो, ये सारी बातें जहाँ, और इसके अलावा अहादीस में भी कुछ बातें हैं, मसलन कि घरों के अंदर सफाई तो वैसे अच्छा एक मतलब करने के एक इंसान मशहूर है सफाई में खुदाई है, तो ये चीज़ें तो है हमारे दीन के अंदर, तहूर शत्र ईमान का हिस्सा है सफाई। तो ये चीज़ें, इसके अलावा बाकी के घरों की जो ये पाकीज़गी नहीं है ना, ये भी तकिए रिज़्क़ का बायस है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घरों की नाचाकियाँ हैं ये भी तकिए रिज़्क़ का बायस है। मतलब मियाँ बीवी के हर वक्त जो है वो नोका टोकी, हर बात पर जनाब बहस करते रहना, तो ये चीज़ें जो हैं ये तकिए रिज़्क़ का बायस बनती है। मसलन मामूली बातों पर एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे रहना, ये कौन सी मतलब बात है? ये चीज़ें भी बिल्कुल दीन के मुताबिक एक मतलब अच्छे तरीके से बात करने का ये रिश्ते होते हैं। औलाद है, बीवी है, बहन भाई है, वालिदैन है, कि इनसे ये मुश्किल जरूर है, क्योंकि इंसान जो है वो यहाँ पर आप करने के यही तो इंसान को समझ नहीं आती। बात तो अल्लाह की मानी है, अपने नफ्स की नहीं मानी। जब नफ्स की बात मानी वहाँ पर ही खराबी पैदा हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुछ लोग हैं वो ख्वाहिशात को खुदा बना लेते हैं, यानी जो अपनी मर्जी है उसी को ही। अराइता मानी तखदा इलाहु हवा, अल्लाह फरमाता है कि हाँ तुमने देखा नहीं उस शख्स को जिसने अपनी मर्जी को ही खुदा बनाया हुआ, यानी जिसको ये है कि भाई मैं मेरे मुताबिक ये। कई लोग ऐसे हैं आप देखें कि बाहर जब बात करते हैं तो कोई जब उनके घर वाला गिला करता है कि भाई ये तो हमारे साथ अच्छा नहीं बात करता, उनको यकीन ही नहीं आता, कहते हैं इस जैसा तो रिश्ता सिर्फ इंसान ही कोई, ये तो बड़ा नेक आदमी है। लेकिन घर के अंदर वो दज्जाली कैफियत, उसमें बड़ा मतलब एक ये चीज है जहाँ पर अल्लाह तुम्हारे मातहत कुछ लोगों को कर रहा है, वहाँ पर ही तो इंसान करना है, वहाँ पर ही। अब देखिए ना कोई बंदा आप फर्ज करें हम में से कोई कहे कि भाई हमने जो चीफ ऑफ आर्मी साहब है ना उनको पकड़ लेता है, पकड़ सकता है। हाँ, घर में जो फर्ज करें कोई किसी का भांजा भतीजा कोई यतीम है उसको तो जाके चपेट मार लेगा। तो इसलिए ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि तुम अल्लाह उसके रसूल के खौफ से जिंदगी गुजारो, ये नहीं कि जनाब जो कमजोर है उसको जनाब तुम छोड़ो नहीं और जो ताकतवर है उसको जनाब नहीं। फिर यहाँ तो इंसाफ पसंद हो, कोई इंसाफ पसंद ना हो तो किसी पुलिस अफसर को कोई मार सकता है, बीवी को आए दिन जनाब को चपेड़े मार के निकाल देता है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल की बात के मुताबिक होना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल के मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। सिर्फ बंदा जहाँ भी काम जो भी बात करे वो अल्लाह उसके रसूल के लिए करे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये भी फरमाई कि तुम्हारे घरों की नाचाकियाँ जो हैं ये भी तंगी रिज़्क़ का बायस है। बड़े वजीफे लोग पूछते हैं कि जनाब ये क्या पढ़ ले भाई ये तो काम कर लो, नमाज पढ़ो घर पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, मतलब ये कि घर के अंदर तुम नमाजें अदा करो, जैसे वहाँ पर फराइज़ नमाजें जमात के साथ मर्दों के लिए वाजिब तो है मस्जिद में आए, लेकिन ये है कि चलो घर में नफल तो पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों और ख़वातीन को तो तरगीब दे सकते हैं। तो लिहाजा घरों के अंदर नमाज का एहतमाम हो, घरों के अंदर कुरान पढ़ने का एहतमाम हो, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो उस वक्त बरकत तो आएगी, बरकत आएगी। तो ये चीज़ें कुछ बंदे की अपनी तरफ से होती हैं, वो गलतियाँ कोताहियाँ जिसकी वजह से बंदे की इज्जत में भी कमी आती है, इसकी वजह से बंदे के रिज़्क़ के अंदर भी तंगी आती है। तो इन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, वरना ज़िंदगी गुजर ही जाती है। लेकिन ज़िंदगी अगर बेतुकी सी गुजर जाए तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। एक दफ़ा ये अल्लाह तबारक व तआला देता है, बाकी चीज़ें तो मिलती रहती है, दौलत है, कभी आज किसी के पास फर्ज करे कुछ पैसे हैं तो कभी खत्म हो गए फिर आ जाएंगे, तो ये निज़ाम तो चलता रहता है। लेकिन जिंदगी ये नहीं है कि जनाब एक दफा खत्म होगी तो फिर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए
मुख्तसर ये क़यामत के अहवाल का जिक्र किया, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी कीमती चीज़ है, इसको ऐसे जब मतलब बेतुके तरीके से गुजार कर बंदा चला जाएगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, फिर हिसाब का दिन ही आना है, उसके बाद दोबारा मौका तो मिलना नहीं है। तो जब हिसाब का दिन आना है तो उस दिन फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान कहेगा कि निहयाती, मैंने इस दिन के लिए, इस जिंदगी के लिए कुछ किया होगा। यानी वो दिन जब आएगा क़यामत का, उस दिन फिर ख्याल आएगा कि यार मैंने इस टाइम के लिए कुछ कर लिया होगा। जैसे आप देखिए जिंदगी में कितने अल्लाह मौके देता है, बंदा अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन वो टाइम गुजर जाता है तो बाद में जब मौका आता है तो फिर बंदा सोचता है काश कि मैंने उस वक्त ये काम कर लिया होता, आज मेरे लिए फायदा होता। तो इसी तरह जब क़यामत के दिन बंदा देखेगा उसके अमाल तो सामने आ जाने, कमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर की नेकी की होगी उसके सामने आ जाएगी, कमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी सामने आ जाएगी। वहाँ पर तो ज़ाहिर है ये छुपने का कोई मामला है ही नहीं, अल्लाह खुद रिकॉर्ड को तैयार कर रहा है, उसमें कोई रद्द-बदल की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा इंसान ने जब देखना है तो अच्छे अमल जब देखेगा तो खुश हो जाएगा, और बुरे अमल होंगे तो फिर वो चाहेगा, जैसे सूरह आल इमरान में आता है, वो चाहेगा कि उसके और उसके रिजल्ट के दरमियान दूर का फासला हो, यानी ये मुझे मिले ही नहीं, मेरा नामा अमाल मिले ही नहीं मुझे। तो इसलिए ऐसे दिन के लिए इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब किताब देना है, और फिर ये ज़िंदगी भी बंदे की सही गुजरेगी, इन तकलीफों दुखों से परेशानियों से बच कर ये ज़िंदगी गुजरेगी। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल की बात माने, ख्वाहिशात नफसानी की तरफ ना जाए, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की बात मानकर ये आसानी भी रहेगी ज़िंदगी गुजरने में, और फिर आखिरत की इज्जतें भी बंदे को नसीब होगी। तो जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है कि आपको पता है कि मस्जिद का ये अल्हम्दुलिल्लाह जो जगह दी है इसकी कीमत अदा करनी है, तो आप मुखय्यर हजरात जो है वो अपने से शामिल करें, और अपने वालिदैन के लिए जो मतलब मिसाल सवाब के लिए भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है अब इतनी ज़िंदगी है, बाद में क्या क्या सूरत हाल होनी है, अभी इब्तदाई मराहल हैं, तो आप इनके अंदर शामिल करेंगे तो बाद के अंदर जितना भी टाइम गुजरेगा तो सदका जारिया के तौर